So now I will be dealing with the life cycle of Selaginella and Dryopteris. So comparative study I will be doing here between these two life cycles. The first feature is main plant body. Selaginella Dryopteris, they belong to the pteridophytes, and we know that in the pteridophytes, the main plant body is diploid. The main plant body is diploid sporophytic. तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक बॉडी का यहाँ पर मैं कुछ पार्ट फॉर्म कर रही हूं. So I'm forming here leafy stem. Leafy stem. A very peculiar structure is seen in the Selaginella, और ये स्ट्रक्चर वहीं से अराइज होता है जहां पर स्टेम ब्रांचिंग शो कर रही है. This peculiar structure which is formed, the structure is positively geotrophic, grows towards the soil, और soil को जब टच करेगा ये structure, it results in the formation of adventitious root. So the structure is positively geotrophic. When it will touch the soil, after touching the soil, it results in the formation of adventitious root. तो ये जो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ स्लैजिनेला के अंदर प्रेजेंट है, द स्ट्रक्चर इज ओनली प्रेजेंट इन द स्लैजिनेला थ्रू आउट द प्लांट किंगडम. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजोफोर. राइजोफोर के अंदर कुछ फीचर स्टेम जैसे हैं और कुछ फीचर रूट जैसे हैं. Yes, this peculiar structure shows similarities both with the stem as well as root. So let's list these similarities here. Stem के लिए आप S लिखिए और root के लिए R लिखिए. तो कौन कौन सी similarities ये show करता है? अब root के साथ जो feature यहाँ पर मिलता है, that this structure, it is non-green. Though I have utilized green chalk to form this structure, but this structure is non-green like the root. Stem का एक characteristic feature है that it is divided into the nodes and internodes. And at the nodes there is presence of the leaves and buds. But here all these structures, they are absent. Nodes, internodes, they are absent like the stem, buds, leaves, they are absent. और रूट को जो ये स्ट्रक्चर मिलता है, रूट को जो फीचर एक मिलता है, जस्ट लाइक द रूट द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक. रूट की तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है. Now let's see what are the features which resembles the stem. One, the structure is aerial. Aerial means the structure is formed above ground. Like the stem, it is formed above ground. रूट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि रूट की जो टिप है, टिप इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रूट कैप. दिस इज रूट कैप, and
रूट के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रूट हेयर. सो द टिपिकल फीचर ऑफ द रूट, दैट इज रूट कैप एंड द रूट हेयर्स, दे आर एब्सेंट. सो प्लीज राइट दिस. रूट कैप एंड हेयर्स, दे आर एब्सेंट. और एक जो मेन फीचर स्टेम को रिजेंबल करता है कि आफ्टर टचिंग द सॉइल, जस्ट लाइक द स्टेम, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट. So after touching the soil, it forms the adventitious root. This is the feature of stem. तो ये जो ऑर्गन है इसके अंदर स्टेम के भी फीचर है और इसके अंदर रूट के भी फीचर है. दैट्स वाई दिस ऑर्गन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गन sui generis. That means this is a new type of organ which is having independent origin, and this organ, this rhizophore, is only and only seen in Selaginella throughout the plant kingdom. Now let's see what will happen in the Dryopteris with respect to the main body. Main body is diploid, sporophytic, और यहां पर present है underground stem, that is rhizome. So here I am forming underground stem, that is rhizome. Now some part of the stem, this rhizome, it is towards the outer side. It is present above the soil. स्टेम में तो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिवाइडेड इनटू द नोड्स एंड इंटरनोड्स, और लोअर साइड पर ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं, अगेन दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स. नाउ द पार्ट ऑफ द राइजोम विच इज आउटसाइड, part of the rhizome which is outside, which is above the ground, वहां पर present है leaves, वहां पर form होंगी leaves. The leaves, they are of large size, the leaves, they are of large size. तो यहां पर मैंने ये एक large size leaf बनाई है. This large size leaf which is present, this is known as frond. Due to the presence of these large size conspicuous leaves, the ferns, they are utilized as ornamental plants. Now the next point, let's see what is the condition with respect to sporangia. Now the sporangia, they are present over the sporophyll, and the sporophyll, they aggregate to form the cone-like structure that is known as strobilus. तो Selaginella के अंदर strobilus form होगा. Strobilus के अंदर present है sporophyll. The sporophyll which are present towards the lower side, they are microsporophyll. So the two types of the sporophyll, they are present here. Microsporophyll and megasporophyll. तो एक ही स्ट्रोबुलस के अंदर दो तरह की स्पोरोफिल प्रेजेंट है. Now the microsporophyll bears microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे बहुत सारे एमएमसी. एमएमसी, that is the microspore mother cell. Now the microspore mother cell, they are diploid. After the meiosis, the microspore mother cells, they result in the formation of haploid microspore. तो मियोसिस के बाद ढेर सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यहां पर फॉर्म होंगे.
मेगास्पोरोफिल बियर्स मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल। यस, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल और यहां पर मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis and after that there is formation of haploid megaspores and the number of megaspores which are formed, that is few, only few, that is 4. तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे और जो मेगास्पोर का नंबर है दैट इज कंपेरेटिवली लेसर, ओनली 4 मेगास्पोर्स दे आर फॉर्म्ड हियर। तो इसका मतलब स्लैजिनेला के अंदर 2 तरह का स्पोर प्रोड्यूस्ड होगा, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। सो दिस टाइप ऑफ द कंडीशन इन द स्लैजिनेला यू कैन कॉल इट एज हेट्रोस्पोरस कंडीशन। सो स्लैजिनेला के अंदर 2 तरह का स्पोर बनेगा, सो हेट्रोस्पोरस कंडीशन। लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन इन द ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस के अंदर ये जो लीफ का मैंने यहां पर ये कुछ पार्ट यहां पर मैं, ड्रायोप्टेरिस के अंदर ये जो लीफ के यहां पर पार्ट्स हैं इनकी लोअर साइड पर प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजिया। एज आई हैव डिस्कस्ड दैट यहां पर जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है दैट इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ एंड द लीफ विच बियर स्पोरेंजिया दैट इज नोन एज स्पोरोफाइल। सो ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ there is presence of sporangia and the sporangia they are present in the form of groups. sporangia groups के अंदर present है। the group of sporangia is known as sori. the group is known as sori. now let's say this is lower surface of leaf. ये leaf का lower surface है, बीच में ये मैंने दिखाई है वेन। वेन के दोनों तरफ सोराय प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 रोज। आपको ये बात समझ आ रही है? ये मैंने दिखाई है वेन और वेन के दोनों तरफ सोराय प्रेजेंट है। तो यहां पर जो सोराय प्रेजेंट है वो कितनी रोज बना रहे हैं? 2 रोज बना रहे हैं। सो द 2 रोज दे आर फॉर्म्ड बाय द सोराय। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम कटिंग द वर्टिकल सेक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ लीफ। मैं लीफ का वर्टिकल सेक्शन यहां पर कट कर रही हूं। तो वर्टिकल सेक्शन ऐसे अपीयर होगा। ये अपर साइड, यू नो दिस इज अडैक्सियल, दिस इज लोअर साइड, दिस इज अबैक्सियल। और यहां पर जो स्पोरेंजी है वो कौन सी साइड पर होगा? लोअर साइड पर। लेट्स से दिस इज वेन, ये तो है वेन। वेन के पास ही प्रेजेंट है प्लेसेंटा। वेन के पास ही प्रेजेंट है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया। तो दोनों तरफ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया बना दीजिए। यस, दोनों तरफ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो वेन के इस तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ द रो ऑफ सोराय, वेन के इस तरफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ द रो ऑफ सोराय। प्लेसेंटा ने यहां पर एक तो बनाया है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के साथ साथ द प्लेसेंटा विल ऑल्सो फॉर्म अ कवरिंग, it will also form a protective covering which will cover the young sporangia. तो आप देख रहे हैं प्लेसेंटा ने एक तो ये स्पोरेंजिया बनाया
और प्लेसेंटा ने ये बनाई है कवरिंग विच विल प्रोटेक्ट द यंग स्पोरेंजिया. दिस कवरिंग विच इज फॉर्म्ड हियर, दिस इज नोन एज इंड्यूसियम. दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज इंड्यूसियम. अगर इंड्यूसियम प्लेसेंटा से बनता है तो इसको हम कहेंगे ट्रू इंड्यूसियम. पर प्लेसेंटा के अलावा अगर कहीं से भी इंड्यूसियम बनेगा तो इसको हम कहेंगे फॉल्स इंड्यूसियम. आर यू गेटिंग दिस? तो यहां पर इंड्यूसियम बना है प्लेसेंटा से, सो यू विल कॉल इट एज ट्रू इंड्यूसियम. So one of the example for the true inducium is Dryopteris, and for the false inducium you write one example there, that is Adiantum, that is walking fern. अब ये है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया यहां पर स्टॉक्ड है. तो एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर यहां पर मैं फॉर्म कर रही हूं. स्पोरेंजिया के आसपास ये बना रहे हैं जैकेट, राइट. Sporangia I have just discussed, they are stalked. तो ये मैंने बनाई है स्टॉक. स्पोरेंजिया के आसपास ये जैकेट विच इज मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. जैकेट के अंदर कुछ सेल्स आपको थिक दिखाई दे रही है. ये जो थिक सेल्स है, दिस थिक सेल्स दे आर नोन एज एनुलस. स्पोरेंजिया के अंदर ये जो सेल्स हैं, जैकेट के अंदर जो सेल्स हैं, ये थिन सेल्स हैं. These thin cells, they are known as stomium cells. ये जो स्टोमियम सेल्स है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो सेल्स कुछ बड़े साइज के हैं. The two cells, they are comparatively larger in size. These two cells which are comparatively larger in size, they are lip cells. Inside the sporangia there is presence of SMC. Sporangia के अंदर बनेंगे spore mother cell. These spore mother cells, they are diploid. After the meiosis they will form haploid spores. meiosis के बाद ये बनाएंगे haploid spores. यहां पर जितने भी स्पोर बनेंगे वो हैं एक जैसे. All the spores which are formed, they are of same type. So this type of the condition, it is known as homosporous condition. So Selaginella के अंदर कैसी condition है? Heterosporous. But in the Dryopteris, all the spores which are produced, they are of same kind. So this is homosporous one. Spore form हो गया है. You know that the spore is haploid. तो haploid spore development के बाद बनाएगा haploid gametophyte. Yes, haploid spore development के बाद बनाएगा haploid generation. And what is the haploid generation known as? That is gametophytic generation. So let's see how this gametophytic generation it is formed here. So let's see how these spore, now it results in the formation of the gametophyte.
फ्लैजिनेला के अंदर जो स्पोर है वो स्पोरेंजिया के अंदर बना है और स्पोरेंजिया के अंदर ही गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी. So you know, when the development of the gametophyte occurs inside the sporangia, this type of the development, it is known as precocious development. तो Flaginella के अंदर precocious gametophytic development. But in the Dryopteris, what will happen? ड्रायोपटेरिस के अंदर स्पोरेंजिया ब्रेक करेगा लिप सेल से. यस, स्पोरेंजिया विल ब्रेक फ्रॉम द लिप सेल्स एंड देन द स्पोर्स दे आर रिलीज्ड एंड दे विल फॉर्म द गैमीटोफाइट. तो इसका मतलब इन द ड्रायोपटेरिस द गैमीटोफाइट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द स्पोरेंजिया. When the gametophyte is formed outside the sporangia, this type of the development, this is non-precocious development. Right? अब फ्लैजिनेला के अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलपमेंट के बाद बनाएगा मेल गैमीटोफाइट. ओके, और जो मेगास्पोर है वो डेवलपमेंट के बाद बनाएगा फीमेल गैमीटोफाइट. सो लेट्स सी हाउ द मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट दे आर फॉर्म्ड हियर. सो दिस इज माइक्रोस्पोर. ये मैंने माइक्रोस्पोर की यहां पर वॉल बनाई है और इस माइक्रोस्पोर की वॉल के अंदर बनेगा मेल गैमीटोफाइट. यस, प्लीज लिसन दिस केयरफुली. ये माइक्रोस्पोर की वॉल है और वॉल के अंदर बनेगा मेल गैमीटोफाइट. सो व्हेन द गैमीटोफाइट इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोर वॉल, when the gametophyte is formed inside the spore wall, this type of the development, it is known as endosporic development. Endo means inside, sporic means inside the spore. तो अब इस वॉल के अंदर मैं बनाऊंगी मेल गैमीटोफाइट. तो ये बाहर की तरफ ये जो मैं सेल्स बना रही हूं, दीज सेल्स दे आर जैकेट सेल्स. यस, दीज आर जैकेट सेल्स. द टोटल नंबर ऑफ द जैकेट सेल्स दे आर 8. फिर उसके बाद ये जो सेल्स मैंने अंदर बनाए हैं, ये जो 4 सेल मैं अंदर की तरफ बना रही हूं, दीज आर एंड्रोगोनियल सेल्स. Androgonial cells, the number of the androgonial cells is 4. साथ ही में एक और सेल बना रही हूं यहां पर. Yes, one more cell I am forming here. This cell which I have formed here, this is प्रोथैलियल सेल. 1 प्रोथैलियल सेल. तो ये जो पूरा मेल गैमीटोफाइट यहां पर बना है, अब इस मेल गैमीटोफाइट के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट है? 8 जैकेट सेल्स, 4 एंड्रोगोनियल सेल एंड 1 प्रोथैलियल सेल. So the total number of the cells in the male gametophyte till now is 13. जब मेल गैमीटोफाइट के अंदर 13 सेल फॉर्म हो जाएंगे तो अब ये स्पोरेंजिया से रिलीज होगा.
जब 13 सेल्स इस मेल गैमीटोफाइट के अंदर फॉर्म हो जाएंगे तो अब ये स्पोरेंजिया से रिलीज होगा. इट मीन्स द डेवलपमेंट, इट मीन्स द रिलीज ऑफ मेल गैमीटोफाइट. The shedding of male gametophyte, it occurs at 13 cell stage. So write this information. Shedding of male gametophyte, it occurs at 13 cell stage. तो बात ये बिल्कुल आपको क्लियर है कि पहले जो डेवलपमेंट हो रही है मेल गैमीटोफाइट की वो हो रही है स्पोरेंजिया के अंदर. But once the male gametophyte will have 13 cells, now it will be released from sporangia. Now let's say what will happen during the female gametophyte development. ये मैंने बनाया है मेगास्पोर. मेगास्पोर की ये वॉल है, मेगास्पोर की वॉल है और ये है फीमेल गैमीटोफाइट. नाउ यू कैन इजिली सी some part of the female gametophyte is outside the wall and some part of the female gametophyte is inside the wall. कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट अंदर है. So such type of the development you can say partially exoscopic development, right? जो पार्ट बाहर है that part is green. Yes, that part is green and this part is known as apical cushion. और इस पार्ट के अंदर ये मैं जो दिखा रही हूं these are archegonia. These are archegonia. आर्चिगोनिया के अंदर एक होगा एग, वेंटर में एग और वेंटर के अंदर एक और सेल होगा दैट इज वीसीसी. और ये है नेक, नेक में एक सेल दैट इज एनसीसी, राइट. इसके साथ साथ यहां पर बनेंगे राइजोइड्स, ग्रीन पार्ट में बनेंगे राइजोइड्स. और जो पार्ट स्पोर के अंदर है, वॉल के अंदर है, दिस पार्ट is working like nutritive tissue. Yes, this is a storage tissue. अब ये जो यहां पर फीमेल गैमीटोफाइट है, this female gametophyte in the flagella, it is released from the megasporangium after the fertilization of the egg. Very important point. फ्लैजिनेला के अंदर स्पेशली द स्पीशीज फ्लैजिनेला रुपेस्टरिस, ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम से रिलीज होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम. Now let's see what will happen in the case of the Dryopteris. अब ड्रायोपटेरिस के अंदर देखो क्या होगा. ड्रायोपटेरिस के अंदर जो स्पोर है वो स्पोरेंजिया से रिलीज हुआ, सॉइल के ऊपर वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद बनाएगा गैमीटोफाइट. सो द स्पोर विल फॉर्म गैमीटोफाइट. The gametophyte in the ferns, it is known as prothallus. Yes, this is known as prothallus. This prothallus is flat, green, means it is autotrophic, green, autotrophic. So you can say it has independent
existence. And the prothallus which is formed here, that is heart shape prothallus. इस प्रोथैलस के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगी. तो एक ही गैमीटोफाइट के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द Dryopteris. So the one gametophyte, if it bears both male and female sex organ, इस कंडीशन को हम कहेंगे monoecious. But in the case of the Selaginella, दो तरह का gametophyte form हो रहा है. One is male, another is female. So this is dioecious condition. So let's see the structure of gametophyte here. So heart-shaped gametophyte. इस गैमीटोफाइट का जो लोअर सरफेस है, दैट इज वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है ये सेक्स ऑर्गन्स. वेंट्रल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है. जो एंटीरियर साइड है वहां पर प्रेजेंट है आर्चिगोनिया. ये मैंने बनाया. आर्चिगोनिया एंटीरियर साइड पर. तो ये वेंटर है और ये नेक है. वेंटर में एक एग के ऊपर एक और सेल, दैट इज वीसीसी. नेक के अंदर प्रेजेंट है सिर्फ एक neck canal cell. So both in the Selaginella as well as the Dryopteris, one neck canal cell is present. Posterior side पर, इस posterior side पर present होंगे antheridia. Yes, on the posterior side there is presence of antheridia as well as for the attachment there is presence of rhizoids. अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म हो गए. सो नाउ इट इज द टाइम फॉर द फर्टिलाइजेशन. ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स है, आफ्टर द डिवीजन दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मदर सेल. And the sperm mother cell, they will form the male gamete. तो इसका मतलब androgonial cell से बनेगा male gamete. The male gamete is sickle shape and it is biflagellated. This is male gamete. आर्चिगोनिया के अंदर बना egg that is female gamete, male and female gamete, they will fertilize. After the fertilization there is formation of zygote. Zygote will develop and form embryo. Zygote develop करेगा और बनाएगा embryo. And this embryo is diploid, so it can form diploid sporophytic body of Selaginella easily. So diploid embryo दोबारा क्या बना देगा? Diploid sporophytic body of the Selaginella. Now two very important feature here. One, zygote से जो embryo की development हो रही है, this is meroblastic. Right, and second, this is endoscopic. तो पहले भी ये बात मैं डिस्कस कर चुकी हूं. मीरोब्लास्टिक का क्या मतलब है? द होल ऑफ द zygote is not involved in the embryo formation. पूरा का पूरा zygote embryo formation के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और एंडोस्कोपिक का क्या मतलब है? दैट इज axis, that is apex axis of the embryo is towards the inner side, that is towards the archegonial venter.
राइट। अब देखते हैं यहां पर क्या होगा ड्रायोपेटारिस के अंदर। ड्रायोपेटारिस के अंदर एंथ्रीडिया में बनेंगे मेल गैमीट। Male gametes, they are coiled, they are twisted, and now they are multi-flagellated. Multi-flagellated male gamete. Right? Archegonia के अंदर बना egg, that is female gamete. Male and female gamete will fertilize, forming zygote. Zygote will develop and form the embryo. अब ये जो diploid embryo है, it can again easily form the diploid main body of the Dryopetalus. It can easily form the main body of the Dryopetalus. Now जैसे यहां पर पढ़ा हमने डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक है, यहां पर आप लिखिए द डेवलपमेंट इज होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक का क्या मतलब है? होल ऑफ द zygote is involved in the formation of the embryo. पूरा का पूरा zygote embryo बनाएगा and the development is exoscopic. So exoscopic means now the axis of the embryo is towards outer. Exo means outer, towards the outer side, that is towards the archegonial neck. So this is all about the life cycle of the Selaginella and Dryopetalus. अब यहां पर मेल और फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन के लिए अगेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. गैमीट्स फ्लैजिलेटेड है तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसको हम कहते हैं जूआइडोगैमी, विच यू कैन नोट डाउन हियर. एंड अगेन फॉर द मूवमेंट ऑफ द मेल गैमीट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल स्टिमुलस. आर्चिगोनिया से केमिकल स्टिमुलस रिलीज होगा. इन दोनों केसेस के अंदर जो केमिकल स्टिमुलस मेल गैमीट की मूवमेंट करेगा दैट इज मैलिक एसिड. सो यहां पर जो मूवमेंट होगी मेल गैमीट की वो किस केमिकल की वजह से होगी? दैट इज मैलिक एसिड. सो इन द नेक्स्ट क्लास I will be dealing some of the important points which are left about the Selaginella and Dryopetalus, and after that I will be starting with the gymnosperms. Thank you so much.